عمران خان کا اقدام قتل اور ارشد شریف کا قتل کیس، نون لیگ اور نواز شریف بری طرح پھنس گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی ابن بھٹی ہوں۔ معزز سامعین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ عمران خان کے اقدام قتل کیس میں نون لیگ اور نواز شریف بری طرح پھنس گئے ہیں۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے قتل کیس میں جو تفتیش ہے یعنی انویسٹیگیشن ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور عطا تارڈ ہائی کورٹ میں پہنچ گئے ہیں کہ جن دو افراد کو وزیر آباد سے گرفتار کیا گیا ہے ان کی رہائی کے لیے، تو عطا تارڈ نے وہاں ہائی کورٹ میں یہ ریمارکس دیے ہیں کہ غلام محمد ڈوگر جو کہ سی سی پی او لاہور ہیں، وہ انتہائی بدمعاش قسم کے انسان ہیں۔ تو ابھی تک تو خیر ان کی جو سروس ہے اس پر کوئی بھی بدمعاشی کا داغ دھبا نظر نہیں آیا۔ غلام محمد ڈوگر صاحب انتہائی فرض شناس آفیسر ہیں، تو جب معزز عدلیہ نے وہ انویسٹیگیشن فائل دیکھی تو انہوں نے جو ہے ان کی اپیل مسترد کر دی، چونکہ حملہ آور جب عمران خان پر حملہ ہوا تو اس انویسٹیگیشن میں ہم نے یہ جب عمران خان صاحب پر حملہ ہوا تھا تو تب ہی اپنے ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ حملہ آور ایک دو نہیں ہیں، بلکہ ہم نے یہ انالیسس کیا تھا کہ حملہ آور 3 ہیں، اور چونکہ ایک جو شوٹر ہوتا ہے، لیکن اس میں عمران خان کے کیس میں 2 شوٹر تھے اور ایک کورنگ دینے والا ہوتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو گرفتار ہوا وزیر آباد سے، اس کا جو مقصد تھا وہ یہ ہوتا ہے کہ بھگدڑ مچانا تاکہ عوام کی توجہ اور پھر جو سیکورٹی پر مامور افراد ہیں ان کی توجہ بٹائی جا سکے۔ تو وہ شخص گرفتار ہوا تھا، اس کو بھی مارنے یا چھڑانے کی کوشش میں جو 2 شخص اسے پکڑنے لگے تھے پی ٹی آئی کے کارکن، جس میں سے ایک شہید ہو گیا تھا۔ شروع میں جو نون لیگ کے ڈی پاکس ہیں لفافے، انہوں نے یہ افواہیں پھیلائی کہ وہ عمران خان کے گارڈ کی فائرنگ سے شہید ہوا ہے، جبکہ اب انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان کے کسی گارڈ کی فائرنگ سے وہ شخص شہید نہیں ہوا تھا، بلکہ حملہ آوروں کی گولی لگنے سے ہی وہ شخص شہید ہوا تھا۔ تو اس کے علاوہ جو عطا تارڈ ہائی کورٹ میں انہوں نے جو وکیل دیا، جو سرکاری وکیل ملزم نوید کو ملا ہے، وہ نون لیگ کا بندہ نکلا ہے۔ اس کی جو ہے نا آج سے کافی عرصہ پرانی ٹویٹس جو ہے نا سامنے آئی ہیں کہ وہ نون لیگ کا بہت بڑا سپورٹر اور ووٹر ہے۔ تو اس نے ایک بیان دیا ہے کہ جب کسی نے کہا کہ آپ نون لیگ کے سپورٹر ہیں تو اس نے کہا کہ میرا نام کسی اچھی جماعت سے تو جوڑتے، آپ میرا نام نون لیگ جیسی بدنام زمانہ جماعت سے جوڑ رہے ہیں۔ تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو نون لیگ کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ بھی اب نون لیگ کے ووٹر سپورٹر ہونے سے ڈرتے ہیں، انہیں شرم آتی ہے کہ ہم کیسی جماعت کے ووٹر سپورٹر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اندر کھاتے کیا گیم ہے، اور وہ جو وکیل ہے وہ کتنا نون لیگ کا تابع دار ہے۔ تو عطا تارڈ کی چیخوں کا مقصد اس میں یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ جو 2 شخص وزیر آباد سے گرفتار کیے گئے ہیں، کوئی دال میں کالا ہے یا ساری دال ہی کالی ہے، کیونکہ یہ وہ افراد ہیں جن کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا گیا کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا، یعنی کہ یہ اب عمران خان کی گیم ختم ہو گئی۔ تو ویسے بھی یہ ضروری تھا
क्योंकि वो जो हमला और नवीद जो एक गिरफ्तार हुआ, एक बंदा गिरफ्तार हुआ और बाकी 3 जो है ना उनका कोई अता पता नहीं। तो ये अलग से हायर किया गया होगा, जिसकी वजह से इसे बाकी 3 हमलावरों का नहीं पता, क्योंकि इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ और पॉलीग्राफ टेस्ट में जो है ना बहुत चीज़ें वाज़ह हुई। पॉलीग्राफ टेस्ट में को भी जो है डीपॉक्स लिफाफों ने बहुत ज़्यादा मजाक का निशाना बनाया। तो ये जदीद दौर है और ये साइंस है। अगर आप कोई 2-4 जमातें पढ़ लेते तो आपको इस पर मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं थी। ये बड़े बड़े पॉलीग्राफ टेस्ट हैं जो हाई प्रोफाइल मुजरमों पर पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज तक इस्तेमाल करती हैं। तो इन डीपॉक्स को शर्म आनी चाहिए, या कम से कम इन्हें कोई तालीम होती या इन्होंने कोई तालीम हासिल की होती तो ये जो है ना इस पर कम से कम मजाक ना बनाते। उसके बाद कुछ लोगों ने पहले भी जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने जब शुरू किया तो कहा कि लॉन्ग मार्च पर हमला हो सकता है जी, लॉन्ग मार्च में हमें खून ही खून नजर आ रहा है। तो उसमें एक फैसल वावडा साहब थे, यकीनन जो है इनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगरचे इनका साबका ताल्लुक पीटीआई से है या अभी भी पीटीआई से है, तो उन तमाम लोगों की, फिर नून लीग के जो राना सनाउल्लाह हैं और उसके बाद अलावा 1-2 और दीगर ने भी इस पर वबेला किया, बल्कि इवन नवाज शरीफ ने खुद कहा, मरियम नवाज ने भी ये लंदन से बैठकर ये बयान दिए कि लॉन्ग मार्च में इमरान खान लोगों को कत्ल करवाना चाहता है। कबल अज वक्त इन सबको इन चीज़ों का कैसे पता चल गया? तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को ये दरख्वास्त देनी चाहिए और मरियम नवाज और नवाज शरीफ और उसके अलावा राना सनाउल्लाह, अता ताडर और इस तरह दीगर जितने लोग हैं जिन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू होने से कबल ही लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च कहा, उन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कि जबकि वजीर दाखिला की जिम्मेदारी तो ये होती है कि वो सिक्योरिटी मुहैया करे किसी भी जलसे को, किसी भी जुलूस को, क्योंकि वो फाका वजीर दाखिला है। तो उसके बाद अब आते हैं अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस की तरफ। ये इंतहाई जो अलमनाक सान्या गुजरा, जो पाकिस्तानी कौम ने ये 2 सानहात 2022 में, एक रजीम चेंज, फिर अरशद शरीफ की शहादत और फिर इमरान खान का इक़दाम कत्ल, ये 3 बड़े सानहे जो पाकिस्तानी कौम ने भुगते और सहे। उसके अलावा जो इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानी गरीब आवाम का हाल कर दिया इम्पोर्टेड सरकार ने, वो तो अलग है। तो अरशद शरीफ शहीद के कत्ल होते वक्त की वीडियो भी सामने आ चुकी है, और फिर जो नून लीग का लंदन का साबका जो है उनका तर्जमान है, उन्होंने भी ये इस पर आकर फिर से एक नया बयान दिया है कि अरशद शरीफ शहीद का जो लैपटॉप है वो मरियम नवाज के पास है, और मरियम नवाज ने उस पर अरशद शरीफ शहीद की शहादत की जो वीडियो है वो देखी, और फिर उसने कहा कि मुझे ये दोबारा हटाकर दिखाई जाए। तो मैं यहाँ ये एक बात करना चाहता हूँ कि कोई शख्स, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है, वो बरतानिया में बैठा है, और बरतानिया में बैठकर यकीनन वो इतना बड़ा झूठ कतन और किसी सूरत नहीं बोल सकता, क्योंकि वहाँ कानून और लॉ की हुक्मरानी है। वहाँ के कानून जो हैं वो सब अमीर और गरीब, हुक्मरान और मजदूर सब के लिए बराबर है। अगर वो पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ ये बात कर रहा है, शाह साहब ये बात कह रहे हैं, इससे पहले भी वो मुकम्मल जो है ना कि इमरान खान के कत्ल पर भी वो बात कर चुके हैं कि नून लीग के जो बट हैं उन्होंने मुझे बुलाया और नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मेरी मीटिंग करवाई, तो वो भी एक अलग से जो है ना इससे पहले बयान दे चुके थे, मुकम्मल तफसीलात बता चुके थे, और अब अरशद शरीफ शहीद पर भी वो मुकम्मल ब्रीफिंग दे चुके हैं, और वो जो है जा चुके हैं पुलिस स्टेशन में, जा चुके हैं, इंदराज मुकदमा की भी उन्होंने दरख्वास्त की है, और फिर इनके कि ये बरतानिया से भागे ना, इसके लिए भी उन्होंने
हुकूमत बरतानिया से यानी कि पुलिस से ये दरख्वास्त की है कि नवाज शरीफ साहब बरतानिया से ना भागें, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ना ही हम भागने देंगे और हम मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो यकीनन एक ऐसा शख्स एक ऐसी जगह बैठकर कतन झूठ नहीं बोलेगा जहां उसे ये डर हो कि मुझे ये जो मैं इतने बड़े, हर एक वो साबका वजीर आजम हैं, अगर मैं उन पर ये इल्जामात लगाता हूं तो मुझे कितनी लंबी कैद होगी और मुझे कितना बड़ा जुर्माना होगा अगर इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें झूठी निकलती हैं। जबकि नून लीग की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस सारे सिनेरियो में अभी तक मुकम्मल खामोशी और खामोशी छाई हुई है। तो ये खामोशी इस बात की तरफ इशारा करती है कि दाल में कुछ काला तो है। और फिर इमरान खान साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये वादा किया कि मेरे कत्ल के पीछे जनरल बाजवा है, क्योंकि जनरल बाजवा मेरी हुकूमत को गिराकर खुद इक्तदार संभालना चाहता था। और हम अपने एक विलाग में नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के गठजोड़ पर एक मुकम्मल और दलाइल के साथ जो है ना गुफ्तगू कर चुके हैं। वो विलाग का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो विलाग भी सुन सकते हैं। तो यकीनन इमरान खान साहब और अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के पीछे भी नवाज शरीफ और बाजवा साहब का गठजोड़ शामिल है। देखते हैं कि अगर अच्छे तरीके से तफ्तीश मुकम्मल होती है, क्योंकि आर्मी चीफ साहब भी इस पर बहुत ज्यादा कह लें कि उन्होंने अरशद शरीफ की वालदा को कहा है कि मैं आपके बेटे को इंसाफ दिलाऊंगा। तो अगर मुकम्मल तहकीक के साथ इन्वेस्टिगेशन होती है तो हक और सच सामने आ जाएगा, और फिर बहुत से जो है परत खुलेंगे और दुनिया और पाकिस्तान की आवाम देखेगी कि इन दो लोगों को रास्ते से हटाने के पीछे कौन कौन से लोग और कौन कौन से दिमाग कार फरमा थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।